Welcome to this channel. Myself Dr. T. N. Devnath. In this video, I will talk about mania. Before going to this video, let me introduce myself. Myself Dr. T. N. Devnath. I have done MBBS from Tripura Medical College and recently doing MD Psychiatry Residency in Assam Medical College. I have also done one postgraduate diploma course from CMC Vellore and postgraduate diploma in pathology from RIMS Ranchi. Also did 2 fellowship, one in diabetes and one in sexual medicine, and I am also a yoga instructor, Government of India, and I have also record of marathon running 21 km in Ranchi, 10 km in Goa and 5 km in Delhi. So let's begin with the topic called mania. Now you may be UG student, you may be PG student, or you may be intern, or you may be nursing student who are undergoing posting in the psychiatry department. So you have come across with a patient with mania. Now when we will talk about mania, we have to understand few important terms. Like mania can be euphoric mania. Now what is euphoric mania? Means happy mood. And you also get some dysphoric mania where patient is very much irritable. So we have to differentiate whether patient has happy mood or patient is irritable, right? Now there will be another term is elation mania where activity of the patient is increased, and exaltation mania where the thoughts of patient is increased, and lastly that is ecstasy state, what we actually called as blissful state. So nowadays when you will see a patient in the ward, psychiatry ward of a mania patient, try to find out whether patient has happy mood, or either patient is irritable, whether activity of the patient is increased, or only the thought is increased, or patient is in blissful state, right? You have to differentiate it. Now we need to know the symptoms of the mania. The most important complaint of the patient will be decreased sleep. Decreased sleep means it does not like the actually patient need for the sleep, need of sleep decreased. मतलब अगर नींद कम भी हो रहे हैं तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पेशेंट इज डूइंग वेल मतलब पेशेंट को स्लीप का कमी का महसूस नहीं हो रहा है. डिक्रीज स्लीप इज एक्चुअली कंप्लेन बाय द पेशेंट पार्टी, by family members. And number 2, the most important is the grandiosity. Grandiosity means supremacy power, that I have that power, I have that control. जो बारिश हो रहे हैं वो मेरे वजह से हो रहे हैं, हम चाहते तो बारिश को रोक सकते हैं, या फिर जो असम का सीएम है उसको हम बनाए हैं. तो ये एक पावर ऑथोरिटीज़ जो होता है वो ग्रैंडियोसिटी होता है. ये ग्रैंडियोसिटी मेनिया में डेफिनेटली मिलते हैं. फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ हम लोगों का दिमाग में आते हैं. डिस्ट्रक्टिबिलिटी, वेरी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, टॉपिक टू टॉपिक बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं. पेशेंट इरिटेबल बहुत होता है, और पेशेंट का जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी इंक्रीज होता है, एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी जो है गोल डायरेक्टेड होता है, मतलब कोई रीज़न के पीछे वो काम कर रहे हैं. तो ये इंक्रीज एक्टिविटी हो सकता है. टॉकेटिवनेस मतलब बहुत ज़्यादा बात करेगा, बिना मतलब का बात करेगा. एनर्जी ऑफ द पेशेंट आप देखेंगे बहुत हाई रहेगा, मतलब पेशेंट का स्लीप नहीं है, नींद नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके एनर्जी का कोई कमी नहीं हो रहा है. एपेटाइट कम हो जाएगा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो ड्यूरेशन मोर देन 1 वीक होता है. और इसमें क्या होता है, एक पेशेंट का हमेशा रिस्क टेकिंग बिहेवियर ये रहता है. पेशेंट हमेशा जिस बिहेवियर में, मतलब जिस एक्शन में रिस्क ज़्यादा होता है वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है. अगर ये सिम्टम्स 1 हफ्ता से ज़्यादा हो रहे हैं देन वी कैन कॉल इट एज मेनिया. नाउ मेनिया में एक्चुअली क्या होता है, दिस इज़ आवर नॉर्मल मोड. आवर नॉर्मल मोड फ्लक्चुएट लाइक दिस ओनली, राइट. और कभी हम लोग को अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये हमेशा एक रेंज के थ्रू नॉर्मल मोड चलता है. लेकिन अगर ये नॉर्मल मोड एक्चुअली एबनॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा ऊपर आ जाता है, देन वी कॉल इट मेनिया. अगर नॉर्मल मोड से नीचे आ जाता है देन वी कॉल इट डिप्रेशन. नाउ कभी पेशेंट को अगर मेनिया है, मेनिया मीन्स पेशेंट इज़ बाइपोलर. बाइपोलर मतलब नॉर्मल नहीं होता है, इधर मेनिया होता है और डिप्रेशन होता है. तो मेनिया पेशेंट को ट्रीट एज बाइपोलर. तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को मेनिया अगर है
तो हम लोगों को अगर पेशेंट मेनिया में प्रेजेंट आता है तो हम लोगों को एंटीमेनिक देना होगा, साथ साथ मूड स्टेबलाइजर भी देना होगा। अगर पेशेंट डिप्रेशन में आता है तो एंटी डिप्रेसेंट देना होगा प्लस मूड स्टेबलाइजर देना होगा। इसका मतलब है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है यह है मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर मॉलिक्यूल है उसको हम लोगों को देना होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मूड स्टेबलाइजर नहीं देंगे, पेशेंट डिप्रेशन में आ रहे हैं, आप एंटी डिप्रेशन शुरू किए तो ये डिप्रेशन फिर धीरे धीरे ठीक होगा, धीरे धीरे फिर मेनिया में चल जाएगा। तो इसीलिए मूड स्टेबलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूड स्टेबलाइजर हम लोग को हमेशा देना होता है। अगर ये जो डिप्रेशन हो या फिर मेनिया हो, ये बार बार अगर फ्लक्चुएट होता है, देन वी कॉल इट रिपीट साइक्लर। रिपीट साइक्लर मतलब एक साल में 4 से ज़्यादा अगर मेनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड हो रहे हैं, मोर देन 4 पर ईयर, then we call it a repeat cycler. Then we have to give some mood stabilizer. तो remember mood stabilizer में सबसे important आता है mood stabilizer। अगर हम लोग बोलेंगे mood stabilizer में हम लोग देते हैं यूजुअली, अगर ट्रीटमेंट का हम लोग बात करेंगे then we give Belproid। बेलप्रोइड अच्छा होता है अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। अगर हम लोग प्रोफाइलैक्सिस के बारे में बात करेंगे देन लिथियम इज़ बेटर ऑप्शन। लिथियम इज़ बेटर ऑप्शन। अगर पेशेंट को नॉर्मल मोड है, पेशेंट ज़्यादा डिप्रेसिव मोड होता है और कम आपका इसका मेनिक मोड होता है, मतलब डिप्रेसिव मोड अगर ज़्यादा रहेगा देन हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं देन दैट इज़ लेमोट्राइजिन। लेमोट्राइजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेनिया प्रेगनेंसी में होता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, लैक्टेशन में हो सकता है, देन हम लोग एंटीमेनिक, एक्चुअली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एंटीसाइकोटिक यूज़ किया जाता है। एंटीसाइकोटिक, ऑल एंटीसाइकोटिक जितना है दे आर एक्चुअली FDA अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। एंटीसाइकोटिक हम लोग मेनिया में दे सकते हैं, एक्सेप्ट अगर बोले तो वन एंटीसाइकोटिक इज देयर दैट इज कॉल्ड क्लोजापिन, व्हिच वी कैन नॉट यूज एज एंटीसाइकोटिक फॉर treatment of mania. Otherwise all other antipsychotics we can use. So this is all about mania. If you have any doubt you can ask in comment section. Thank you so much.